Hello guys, you all are doing great. And today, we are going to start our explanation on exercise 10.3 of vector algebra, CBSE grade 12. Okay, before this, I hope all of you have seen the previous videos to know where we are coming from. Suddenly ये वीडियो देखोगे तो कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली 10.3 का एक्सप्लेनेशन. क्या देखेंगे हम इसमें? In this we are going to understand the concept of dot product. क्या है dot product? Dot product का अपना एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं scalar product. The other name of dot product is also scalar product. तो क्वेश्चन में जब ये वर्ड आए स्केलर प्रोडक्ट, मतलब दे आर आस्किंग यू फॉर ए डॉट प्रोडक्ट. क्या है ये? सपोज दिस इज वन वेक्टर वी हैव. सपोज ये आपका है ए वेक्टर, ओके, और दूसरा एक वेक्टर है, दिस इज आपका, दिस इज योर बी वेक्टर. नाउ वी कैन वेरी प्रोमिनेंटली सी दैट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स देयर इज एन एंगल दैट इज फॉर्म. लेट्स से दिस इज एंगल थीटा. Okay, now here we can say that if suppose if a vector and b vector, if a vector and b vector are two vectors such that the angle between them क्या है angle between them? Theta, correct? That the angle between them is theta, correct? Then if के बाद क्या हमेशा? If is always followed by then क्या होगा? Then we can say that a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta. Theta मतलब cos value of this particular angle, correct? Now ये एक basic form है, correct? This is एक basic understanding. Now from this we can derive a lot of things which we will use for our dot product. ये समझा आपको क्या है? दो एंगल्स हैं, दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स एक इट इज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? जस्ट टू अंडरस्टैंड what will this theta be? Now theta, therefore theta will range from where? Theta will be less than or equal to 180, but it will be greater than or equal to 0 degree, correct? तो थीटा एक पूरा लाइन कवर करेगा फ्रॉम 0 to 180 डिग्री तक, करेक्ट? थीटा का दिस विल बी द वैल्यू इन विच थीटा विल बी. बट फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा, if we have these two vectors and if these two vectors are making an angle anything between 0 degree to 180 degree, then we can use this concept. तो as I said, ये basic है और अभी इसके आगे we will derive a lot of things as we go ahead. So let's see what is the first thing we can say. The first criteria or the first derivation or first understanding of what we learned right now. See, we got that a vector dot b vector. First thing we have to understand that this is a scalar quantity. What is this? This is a scalar quantity. Why this is a scalar quantity? फॉर्मूला क्या है अपना? देखो, अपना फॉर्मूला है कि a वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्या मिला हमारा? फॉर्मूला क्या है? देखो, वी हैव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये क्या इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा. ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है? देयर इज नो डायरेक्शन हियर, देयर इज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इज मिसिंग. अगर डायरेक्शन मिसिंग है तो इसको तो वेक्टर क्वांटिटी बोल नहीं सकते. दैट इज व्हाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट? नाउ if we multiply or if we find out a vector dot b vector,
then this will be same as b vector dot a vector, which means what? Which means they are commutative. What are they? Which means they are commutative. Correct? Now, third thing, क्या डिराइव हो सकता है? देखो, इफ अभी थीटा एंगल हमने कहाँ से देखा? इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 180. तो हर एक एंगल का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होगा, लेकिन द मोमेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, when theta is equal to 90 degree, then both the vectors will be perpendicular to each other. Obviously no, सोचो तो ज़रा भाई. करेक्ट? देखो, ये एक वेक्टर है, ये है. अब इसको मूव करते करते आप यहाँ पे, ये एंगल की बात हो रही है ना, दिस इज थीटा. इफ यू कीप ब्रिंगिंग दिस स्ट्रेट लाइक दिस, तो ये ऐसे होगा, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा ना. सो बेसिकली ओके. So I hope you understood what I mean to say, correct? That means when theta is equal to 90 degree, then both vectors are perpendicular to each other. Correct? They are perpendicular to each other. Correct? Let us see what is the fourth thing. Are you getting it or no? ये समझा कि नहीं सबको? अगर वो परपेंडिकुलर है, फोर्थ थिंग नहीं, सॉरी, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? दैट मीन्स आपका ये, एज आई सेड, देखो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर. करेक्ट? तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री. करेक्ट? दैट मीन्स नाउ व्हाट कैन वी राइट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? Can I say this is A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos 90. Correct? Cos 90 की वैल्यू क्या है? Cos 90 is equal to 0. तो cos 90 की वैल्यू इज 0. अगर cos 90 की वैल्यू 0 है, तो देन व्हाट कैन वी राइट दिस वन? दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू 0. तो भाई मेरे, ये 0 बन गया. यस और नो? दैट मीन्स व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0. करेक्ट? ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डॉट प्रोडक्ट, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. करेक्ट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. फोर्थ क्या है? सपोज दैट योर एंगल थीटा इज 0 डिग्री. करेक्ट? तो फिर क्या आएगा? देखो, देयरफॉर व्हाट विल हैपन? 0 मतलब ये आपका ए वेक्टर है, ओके, और बी वेक्टर भी इसी के ऊपर है. एंगल बन ही नहीं रहा है ना, इसी के ऊपर. दिस इज योर बी वेक्टर. देयर इज नो एंगल दैट इज बीन क्रिएटेड. देन व्हाट विल हैपन हियर? देयरफॉर कैन वी से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos 0. अब cos 0 की वैल्यू 1 है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1. ओके, ये cos थीटा नहीं है, ये cos 0 है. करेक्ट? cos 0 इज इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स व्हाट विल यू गेट? देयरफॉर वी विल गेट दैट ए वेक्टर dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector when theta is equal to 0. करेक्ट? तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन क्या आएगा? दैट when theta is equal to 0, a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector. Correct? This should be your understanding. Okay, now look at the fifth case. Fifth case क्या है?
ओके देखो यहाँ पर ना एक चीज़ और एक हम लोग वी कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग सी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर नाउ इफ वी कैन से अगर ये वेक्टर है तो आई एम गोइंग टू पुट अ स्टार मार्क हियर ओके सी दैट मीन्स इफ आई से ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर मैं एक वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ व्हेन एक वेक्टर देखो अगर एंगल 0 है तो मैं इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई आई कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट नो बिकॉज बेसिकली देर इज नो एंगल क्रिएटेड द एंगल इज 0 right so then a vector into a vector that will be giving me what magnitude of a vector into magnitude of a vector into cos 0 का 1 आएगा right so therefore if cos 0 is 1 right that means I will get this as a vector dot a vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of a vector बस क्योंकि cos 0 निकल जाएगा करेक्ट या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना फिर कि a वेक्टर ए डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड या ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है लेकिन एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपको दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी गेटिंग इट okay I hope you guys are getting it okay चलो now see ये जो एंगल है अपना थीटा दैट वी सॉ 0 डिग्री दैट वी सॉ 90 डिग्री लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन दिस थीटा इज थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है हमने क्या देखा अभी ये थीटा जो है वो 0 डिग्री से चालू होगा यहाँ से ओके और वो मैक्सिमम कितना होगा 180 डिग्री करेक्ट तो इट विल कम एंड एंड दिस साइड ओके थीटा विल स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस इज योर 180 डिग्री यहाँ पे एंड होगा चालू यहाँ से होगा तो थीटा का एंगल इतना ही हो सकता है करेक्ट नाउ मैक्सिमम थीटा कैन मैक्सिमम भी 180 बिकॉज इफ थीटा इज मोर देन 180 अगर थीटा मोर देन 180 हुआ ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्रीन लाइन अगर ऐसी हो गई ओके इट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर अगर ये ग्रीन लाइन इतनी दिस तो हमको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा then this angle will be considered correct this angle will be considered right और वो क्या होगा फिर this angle will be considered and then it will look very I mean it will not give you क्योंकि ये क्या होगा it will become a negative part देखते हैं next property इसकी है we will do this understand I hope you got what I'm trying to say okay let's see एक negative 180 से ज़्यादा जब होगा तब क्या okay so this is the fifth property that we will see that if suppose पहले चालू करते कि when theta is equal to when if theta is equal to 180 degree then what will happen if theta is equal to 180 डिग्री अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा तो चलो देखते हैं तो वी हैव द फॉर्मूला वी विल पुट इट अप इन द फॉर्मूला करेक्ट देन वी विल से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 180 करेक्ट कॉस 180 की वैल्यू -1 राइट ये पता होना चाहिए आपको करेक्ट कॉस 180 की वैल्यू क्या आएगी -1 okay then what you will do here therefore can I say this is equal to a vector into b vector is equal to negative of a vector into b vector ये कब है when this is when theta is equal to 180 degree correct ये when है तो ये क्या होगा ये then all right let's see let's see the sixth property देखो ये जो लास्ट में थोड़ी देर पहले हमने देखा वी गॉट अ डेरिवेशन वेयर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, करेक्ट। इससे और एक चीज़ हमको मिलेगी, आपको पता है वी हैड सीन व्हाट इज़ आई, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर आई है, ये यूनिट उसका यूनिट वेक्टर इज जे और इसका यूनिट वेक्टर इज के, करेक्ट। रिमेंबर वी हैड सीन दैट, तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी देयर। दैट मीन्स कैन वी से दैट we can derive what from this, that i cap भी तो एक वेक्टर ही है ना, ये यूनिट वेक्टर है। i cap into i cap will be magnitude of i cap into magnitude of i cap into cos 0, करेक्ट, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से आएगा ना, cos 0 आएगा ये। अब cos 0 का वैल्यू 1 है, तो फिर क्या आएगा, i cap into i cap is i cap dot i cap is equal to, see magnitude of i cap is 1 into magnitude of i cap is 1 into cos 0 is also 1. So this basically i cap dot i cap is equal to 1, correct. I cap dot I cap is equal to 1, right. Similarly j cap dot j cap will be also 1 with the same fundamental, that will also be 1, correct. So same fundamental, we will say j cap dot j cap, this will be what, this will be magnitude of j cap into magnitude of j cap into cos 0. So j cap dot j cap also will be what, j cap dot j cap will be 1 into 1 into 1. So that also will be, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत सारे सम्स में हम यूज़ करेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 1. And then last but not the least we will have k cap dot k cap. K cap dot k cap will give you magnitude of k cap, sorry, into magnitude of k cap into cos 0. This will be what, k cap dot k cap, magnitude of k cap is 1, magnitude of k cap is 1 and cos 0 is equal to 1, तो ये भी 1 ही आएगा, करेक्ट. k cap dot k cap is also equal to 1. So ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता चलती है from the first derivation that we did, correct. चलो let's go to the next one, that's going to be the 7th one. क्या है वो, now suppose we have let's draw our axis, okay. Suppose ये हमारी y axis है, okay. This is our x axis and this on the top here sorry ये सीधा तो कभी भी नहीं आता है, 1 second let me try and see if I can draw a straight line, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, okay. All right, so this is your z axis. Now x, y and z axis, these axes are what, see listen, x, y and z axis, ये क्या है उनका, they are mutually perpendicular to each other, yes or no, mutually perpendicular to each other, that means they all form a 90 degree, right. So if they are forming, that is they are 90 degree, right. ये तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए ग्रेड 12 के लिए, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ, कोई पहली बार एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई करेगा उनको ज़रूरत पड़ेगी इसकी ना. दैट मीन्स व्हाट, देखो ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप, करेक्ट. ना दैट मीन्स आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, when if these are perpendicular to each other, और अगर आप इसको वेक्टर का नाम दे दो, अगर आप बोलो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है, अगर आप उसको वेक्टर का नाम दे दो तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर ये 90 डिग्री है देन वी नो दैट व्हेन द टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री द डॉट प्रोडक्ट इज 0. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स that if you multiply I cap into j cap, you will if you find the dot product of I cap and j cap, you will get a 0.
Similarly, the dot product of j cap into k cap will also be 0. All these are mutually perpendicular to each other. इनको 0 ही आना है. Correct? This is equal to j cap into dot k cap will also be 0. Correct? Listen, we are going like this. I into j, j into k into I, like this. Getting it? So last क्या आएगा अपना k cap dot I cap, that is also equal to 0. ठीक है ना? इसका मतलब ये सारे इक्वेट हो गए ना. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दे आर ऑल इक्वल ना रे बाबा. ओके, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप. दिस ऑल इज इक्वल टू 0. यस, बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज़ करेंगे हम लोग इसको. गेटिंग इट? चलो, आई होप ये समझ में आया है सबके. Okay, now if we are again, let's go to the next page. Suppose we are given two vectors. So we are given two vectors. Suppose ये एक है, this is one vector, let's say, and this is another vector, let's say, और ये आपका A vector and this is your B vector and this is the angle that has been formed, which is your theta angle. Correct? So we know that यहाँ पर then can we say that from what did we start this chapter, this exercise with? Saying that A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta. यहाँ से चालू किया ना हमने, राइट? तो क्या करेंगे फिर अभी? देखो, A vector dot B vector, therefore we can say that divided by magnitude of A vector into magnitude of B vector is equal to cos theta. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. Then we can say cos inverse of A vector dot B vector divided by magnitude of A vector into magnitude of B vector is equal to theta. This is exactly how you get your theta angle. Are you getting it? This is how we find the measurement of this angle. So ये formula क्या है? This is to find theta value. थीटा की वैल्यू ढूंढने के लिए वी विल सी इफ वी नीड टू यूज़ दिस स्टेप. मोस्टली आवर सम्स आर लिमिटेड टू द प्रीवियस स्टेप ओनली, तो यहाँ तक तो हम नहीं आएंगे. तो बट वी विल सी, जहाँ पे भी वी विल थिंक दैट वी नीड टू यूज़ इट, वी विल यूज़ इट. दिस वाज आवर 8th डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. करेक्ट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्या है यहाँ पर? सी, नाउ सपोज दिस इज द 9th वन. Suppose we are given that A vector is equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap. Correct? And we have another vector, say B vector, and that is equal to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. Correct? Now if this question is, यहाँ पे एक हमको क्वेश्चन दिया है, ये मुझे चाहिए कौन कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है that find the angle between them, between the two vectors, है ना? एकदम फटाफट आगे का बिना सोचे समझे किसने चालू किया फॉर्मूला यूज़ करना? हाँ, एकदम धड़ाम करके. So many will jump and say ना, yeah we can use this formula. Can we or no? अरे we can't. How many of you jumped in? Honestly, who all started using this formula? A vector dot B vector divided by magnitude of A vector
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, हाँ, इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ हमको मिल गया ना, उसमें क्या इतना, अरे कौन ढूंढेगा इसको? हाउ विल यू फाइंड दिस, हाउ विल यू फाइंड दिस, हाउ विल यू फाइंड दिस, ये कैसे ढूंढोगे आप? वी कांट नो लाइक दिस because these vectors are in component form, these vectors are in component form, correct? Now we have to understand how to find the dot product if the vectors are in component form, यही तो सीखना है। yes, ये vectors क्या है हमारे, they are in component form, इसे हम लोग ये फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब when we are given vectors in a component form देन हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, ये हम सीखेंगे यहाँ पर। वो एकदम कूद के जाना मत इधर यूज़ करने के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग इट? चलो तो कैसे करेंगे देखो, अभी ये लिखते हैं फॉर्मूला, ओके। सी यूज़ तो वही फॉर्मूला करना है, यूज़ तो हमें फॉर्मूला वही करना है, लेकिन प्रोसेस उसको प्रोसेस वाइज करना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला वी विल यूज़, ओके लेट्स राइट इट डाउन अगेन। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है that a vector dot b vector divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector, this will give us our cos angle theta, ठीक है ना? ठीक है, अब लेकिन a वेक्टर डॉट b वेक्टर तो ढूंढो ना पहले, तो ढूंढते हैं फिर। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आएगा, इसको दोनों को प्रोडक्ट ढूंढना है इसका, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, करेक्ट, इंटू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो इसका कितना आएगा देयरफॉर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, ये आएगा a1 a2 i इंटू आई, याद है ना, 1 आएगा, i इंटू आई, देखो एक्चुअली ये आई स्क्वायर है ना, a1 इंटू a1 इंटू a2 आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर 1 है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे फिर, राइट, ओके, प्लस b1 इंटू b2, j इंटू जे आएगा, जो भी 1 आएगा, करेक्ट। किसको समझ में आ रहा है, या बेबी स्टेप्स ले ले, समझ में आ रहा है कि नहीं, वापस करूँ? ओके लिसन, a1 सिर्फ हम लोग कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी a1 i कैप इंटू a2 i कैप, फिर प्लस दिस विल, अरे ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो a1 इंटू जे जब करोगे ना वो 0 हो जाएगा, एक मिनट, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को समझेगा ही नहीं ये मैंने क्या किया। ओके लेट अस डू इट, a1 i कैप, ओके पहले इसके साथ सारे मल्टीप्लाई करोगे, मैं सिर्फ दिखाऊंगी, बाद में मैं इरेज कर डालूंगी, समझ लेना, इतना लंबा जगह नहीं है मेरे पास, ओके। प्लस अब ये a1 से a1 i कैप से आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई व्हाट, आई विल मल्टीप्लाई b2 j कैप, a1 i कैप इंटू b2 j कैप, ओके, प्लस a1 i कैप इंटू c2 k कैप। अभी एक बात समझो, देखो a1 i कैप ये प्रोडक्ट है, ओके। नाउ ये दोनों का मिला के क्या आएगा, दिस विल बी a1 i कैप इंटू a1 a2 i कैप, तो दिस विल बी a1 इंटू a2 इंटू आई कैप स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस, रुको कुछ तो गड़बड़ हो गई, आई राइट इट अगेन, one second, ऑलराइट, देखो a1 with this, correct, if I write down this and if I say that a1 i cap, correct, इसको अंदर ब्रैकेट में ये पूरा लिखेंगे, सपोज a2 i कैप प्लस b2 j कैप
प्लस C2 K कैप, ठीक है, प्लस अब B1 को अलग कलर से लिखते हैं कि B1 J कैप, B1 J कैप, इसको प्रोडक्ट में वापस वी विल राइट द फुल थिंग, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ऐसे हम C के लिए भी लिखेंगे। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आई एम जस्ट राइटिंग दिस टू शो यू ऑल। ओके लिसन, अब ये और ये व्हेन यू राइट डाउन A1 I कैप into A2 I cap, तो दिस विल बी A1 into A2 I cap square, no? Yes or no? It will be I cap square. अच्छा लेकिन इसका क्या हो रहा है, A1 into B2 J cap, A1 into B2 and I into J 0 हो जाएगा ना, अभी तो हमने देखा, दिस विल बी A1 B2 into I cap into J cap। अब ये पूरा एलिमेंट 0 है, क्यों, अरे क्योंकि cos 0 0 आएगा ना, यस और नो, इसके लिए दैट इज वाई दिस विल बी 0, और ये क्या आएगा ना, cos 0 नहीं सॉरी, क्या इसका 90 डिग्री, I एंड J आर 90 डिग्री ना, 90 डिग्री पे, दैट इज वाई इट विल बी 0। ये 0 है यहाँ पर, यहाँ पे cos 0 आएगा क्योंकि आई एंगल का आई एंगल के साथ ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे cos 90 आएगा। अगर cos 90 आएगा तो ये अपने आप में 0 हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूरा खुल के करके देखो, फिर समझेगा। मैं पूरा खुल के नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक यू गाइस शुड हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी हैव टू डू, करेक्ट। तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट डाउन, और करके देखो ही प्लीज़, ऐसे मत करो कि मैंने किया है तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे मत करो, करके देखो, पता चलेगा क्या हो रहा है। ओके चलो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, करेक्ट, प्लस C1 इंटू C2। ओके, इसके लिए अगर चाहिए तो एक काम करो, यहाँ पर एक नोट लिखो, दैट I कैप इंटू I कैप, J कैप इंटू J कैप एंड K कैप इंटू K कैप, ये सारे क्या आएंगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1। एक तो इनको वहाँ पे दिख, ये 1 1 यहाँ पे आएगा, दिखाने की जरूरत नहीं, नॉट चेंजिंग। एंड सेकेंड थिंग आपको और एक बात, एंड I कैप इंटू J कैप इज इक्वल टू 0, J कैप into K cap that is equal to 0 and K cap into I cap is again equal to 0, and since there is, इसको तो क्या है बताने की जरूरत, no need to show, correct, are you understanding? इसका डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ओके यहाँ तक समझा है सबको? ओके नाउ व्हाट विल हैपन, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके सो नाउ वी हैड A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, पहले में हाउ इट कम्स, ओके वी हैड A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप इंटू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, करेक्ट। तो ये पूरा मुझे लगता है मैं खुल के बता दूं क्या, आई थिंक बता देती हूँ ना, पता चलेगा सबको मेरे ख्याल से, दैट इज अ बेटर थिंग। और एवरीबडी अंडरस्टूड what we did in the previous slide? Did you all understand what we did in the previous slide? Yeah, if there is somebody who's not understood, I am just going to do it for them here. करोगे नहीं आप लोग तो आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। फॉर्मूला जैसे बाय हार्ट मत करना इसको। देखो व्हाट आई डिड वाज, आई डिड A1 I कैप इनटू अभी ओके B2 J कैप प्लस C2 K कैप, करेक्ट, प्लस ये कितना आएगा, दिस विल बी B1 J कैप into bracket, this will be A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap plus it will be C1 J cap, C1 K cap, अंदर कितना आएगा A2 I cap
plus b2 j cap plus c2 k cap. Correct? Now when you open this bracket, what will happen? This will become a1 I cap into a2 I cap. Correct? Plus this will become a1 I cap plus b2 j cap. Correct? Plus this will become a1 I cap plus c2 k cap plus b1 j cap into b2 j cap, sorry, plus b1 j cap प्लस यहाँ पे a2 आएगा, ओके, प्लस b2 j cap प्लस यहाँ पे आएगा b1 j cap इंटू c2 k cap प्लस सेम यहाँ पर भी c1 k cap इंटू a2 I cap प्लस c1 k cap इंटू b2 j cap प्लस c1 k cap इंटू c2 k cap। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ज़रा, ये इसका वैल्यू आएगा क्योंकि दिस विल बी a1 इंटू a2 I स्क्वायर। करेक्ट? इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी a1 इंटू a2 सॉरी b2 इंटू I इंटू j, और I इंटू j तो ज़ीरो होता है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा, वैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा, वैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा, देख लो, और ये ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा सिर्फ ये वाला, ये वन और ये तीन, है ना? तो वो क्या देंगे आपको? यही देंगे जो हमने लिखा है ना? दैट विल गिव यू a1 a2 I cap स्क्वायर प्लस b1 b2 I cap सॉरी j cap स्क्वायर प्लस c1 c2 k cap स्क्वायर। अभी I cap j cap k cap स्क्वायर ये सारे वन होते हैं, तो फाइनली आपको मिलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से आए ना हम लोग, है ना? कहाँ से आए हम लोग? यहाँ से ना, पूरा डिराइव करते करते। तो देयरफॉर इट विल बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, क्या निकलेगा ये? दिस विल बी a1 a2 जो हमने पहले देखा वही है, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। Getting it? This is your formula now. Correct? Now we can say that if a vector are given in the component form, तो अभी इसको कैसे करेंगे? यहाँ तक तो पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक हमने सिर्फ क्या निकाला है? हमने सिर्फ न्यूमरेटर निकाला है, अब डिनोमिनेटर निकालना बाकी है ना? आई गेटिंग इट? सिर्फ अभी डिनोमिनेटर निकालना बाकी है। डिनोमिनेटर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो क्या करेंगे हम लोग फिर? तो करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज हमारा बेसिक फॉर्मूला। क्या याद है ना कि भूल गए? बेसिक हम लोग क्या डिराइव करें? वी आर डिराइविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, लेकिन हमारे वेक्टर की वैल्यू हमको दी है। So now we found out in the numerator, what did we find out in the numerator? We found out that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 and then is अभी डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो मैग्नीट्यूड हमको पता है ना, मैग्नीट्यूड कैसे आता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ, नो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा? दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। करेक्ट? ये एक ब्रैकेट आएगा, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा आपका? दैट विल बी रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर। गेटिंग इट? ये आपको अगर आपका कंपोनेंट फॉर्म में है, then this is how you will find your cos angle theta. Correct? When we want to find an acute angle, we will take the same formula in modulus form. Correct? We will see, जब ये आता है तब देखेंगे। तो आपको जब भी when your vectors are in component form, this is the formula we will use to find out the cos angle theta. Correct? cos theta ढूंढने के लिए this is what we will do. Now before we go ahead we will two more things को याद रखना है यहाँ पर। ओके, important लिखो या two more things whatever it is. ओके, देखो that first one it says that a vector into or dot b vector dot c vector. This we can write down as a vector dot b vector plus प्लस है यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर. दिस विल बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर. करेक्ट? एंड सेकेंडली दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या होता है आपको पता चला कि नहीं? यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. करेक्ट? ये क्या हुई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और सेकंड क्या है? इफ वी हैव अ कांस्टेंट से लैम्डा इनटू ए वेक्टर and then we find out a dot product of b vector, this will be same as taking lambda common outside and we can have as a vector dot b vector which is equal to lambda b. करेक्ट? ओके, अब थोड़े सम्स करेंगे हम लोग यहाँ पर. ओके, आफ्टर यहाँ तक आई होप एक बार देखना है तो देख लो, बिकॉज वंस वी स्टार्ट डूइंग सम्स then directly formula use आएगा and then it will be little fast, will move a little fast. ठीक है? तो we'll wait here for a while and then pause. You also pause this video, you also check if you have any doubts and then we solve the questions. Okay? Okay, तो example देखते हैं अभी on the type of questions that we will see here. So they have given that find the angle between vector a and b with the magnitude of 1 and 2 respectively and when a vector dot b vector is equal to 1. Okay, तो क्या दिया है? we have to find what? we have to find the angle. ढूंढना क्या है हमें? we have to find the angle between two vectors. है ना? दिया है ना उन्होंने वहाँ पर, find the angle between two vectors दिया है वहाँ पर. So we have to find the angle between two vectors. So suppose this is your one vector, say a vector, और ये आपका दूसरा वेक्टर है say b वेक्टर. तो इन दोनों में ये एंगल बन रहा है, ये थीटा है. करेक्ट? अच्छा, तो गिवन क्या है हमें? we have been given के magnitude of a vector is equal to 1. we have been given that magnitude of b vector is equal to 2. Okay, and one more information is given to us that they are saying that a vector dot b vector, the dot product is equal to 1. So what is the formula that we have here? The formula that we have is a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta. ये हमारा फॉर्मूला है. करेक्ट? तो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला. सो वी कैन से देयरफॉर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. एक्चुअली ये फॉर्मूला है हमारा, मैंने आई थिंक थोड़े पहले से चालू किया सब ना. ओके, b वेक्टर नेवर माइंड दो, फ़र्क कोई पड़ने ही नहीं वाला है. ठीक है ना? तो ये होगा cos थीटा. अब ऑन द अदर साइड वी विल नाउ पुट अप द values of whatever they have given us. So what have they given us? a vector dot product क्या है? dot product is 1 divided by magnitude of a vector क्या है? magnitude of a vector is 1 into
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है 2, तो आप दिस इज इक्वल टू आएगा cos थीटा, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कौन सा एंगल का होता है व्हाट टू से हाफ, विच एंगल, that is equal to pi by 3 cos 60 ना, pi by 3 cos 60 is equal to cos 60 is equal to half, remember, or we can say that cos pi by 3 is equal to half. तो आपका आंसर क्या आएगा therefore we can say थीटा, क्योंकि थीटा पूछा है उन्होंने तो हम लोग बोलेंगे pi by 3, करेक्ट, या फिर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, आप दोनों भी लिखो क्योंकि आपको नहीं पता 60 डिग्री ये एंगल पूछा उन्होंने, डिग्री में है कि रेडियन वैल्यू में नहीं पता, तो हम लोग दोनों भी लिख देते हैं, यहाँ पर इज वन एंड द सेम, करेक्ट. आसान है ना एकदम. चलो लेट्स गो अहेड. सो दे हैव गिवन अस दैट फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अच्छा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या है. they have given us, given क्या है, given is a vector is equal to I cap plus j cap minus k cap and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap, करेक्ट. अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें, we have to find theta which is angle between the two vectors, correct, angle between the two vectors, that is a vector and b vector, ये दोनों के बीच वाला एंगल हमको ढूंढना है, ठीक है ना. अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही, उसे यूज़ करेंगे हम, करेक्ट. क्या है वो, अभी फॉर्मूला ठीक ठाक लिखेंगे. पहले मैंने आई स्टार्टेड वन स्टेप अहेड, नो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस विल गिव यू योर कॉस थीटा, करेक्ट. अभी देखो, ओके, लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट. तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना, याद है हमने कंपोनेंट फॉर्म है ना ये, तो हमको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ओके, तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो दैट विल बी, ये दोनों है ना आई इंटू आई, सो दैट विल बी आई कैप डॉट आई कैप प्लस, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, ओके, माइनस जे कैप इंटू जे कैप प्लस जे कैप इंटू माइनस जे कैप ना, ओके, और ये प्लस इंटू माइनस भी माइनस आएगा, के कैप इंटू के कैप. तो अभी इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है, ये 1 आती है, करेक्ट. ओके, एनीवे को एक काम करेंगे, वी विल जस्ट राइट डाउन इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली लिख लेंगे, विच इज़ रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू, इसको एक ब्रैकेट में जाने देते, इंटू अनदर ब्रैकेट विल गिव यू, दिस ऑल्सो विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो आपको मिलेगा ए वेक्टर डॉट, अच्छा ये क्या है आपको पता है ना, ये दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हैं फिर यहाँ पर ना, या फिर पहले वैल्यू ढूंढते. चलो, इसका कितना आएगा, देखो दिस विल बी 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये आएगा √3 इंटू √3, दिस विल बी -1 बाय -1/3 है ना, that will be -1 by 3. So therefore we can say cos theta is equal to -1 by 3. So theta आएगा आपका cos inverse 1 by 3, बस ये आंसर -1 by 3, सॉरी, ओके. तो ये आंसर आपका इधर ही एंड हो जाता है, इट विल बी cos theta cos inverse, it will be cos inverse 1 by 3, करेक्ट. ओके, ये आपका आएगा आंसर फाइनल, राइट. ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
they have given us a vector which is 5 I cap minus j cap minus 3 k cap and there's another vector. वेक्टर लिख लेते हैं पहले, चलो. तो क्या दिया है, okay, a vector is given to you which is equal to 5 I cap minus j cap minus 3 k cap एंड एक बी वेक्टर दिया है हमें विच इज़ आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप. ठीक है, बताना क्या है, शो दैट. अच्छा, तो यहाँ पे दिया है कि शो दैट, ये गिवन है ऊपर का, एंड वी हैव टू शो दैट, क्या बताना है हमको, that the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular. okay, ये बताना है हमको कि a vector plus b vector is perpendicular to a vector minus b vector, ये बताना है हमको. ठीक है, तो फिर एक एक करके करेंगे. पहले हमको a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है वो निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली okay, I'll start it from here. Okay, first of all let us find out what is a vector plus b vector. What will be a vector, ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे. that's equal to 5 I cap plus 5 I cap minus j cap, 5 I cap minus j cap minus 3 k cap plus I cap plus 3 j cap minus 5 k cap. तो ये होगा 5 I cap minus j cap minus 3 k cap plus I cap plus 3 j cap minus 5 k cap. तो ये कितना आएगा आपका, दिस विल बी, एक इसको नाम दे देते ना हम लोग, वील से दिस इज़ लाइक a प्लस बी वेक्टर को एक नाम देते कि ये c वेक्टर है सपोज. ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 प्लस 1 तो ये आएगा 6 I कैप माइनस और ये है तो प्लस 2 j कैप और दिस विल बी माइनस एंड माइनस और माइनस 8 k कैप. करेक्ट, तो दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर. अब नाउ वी हैव टू डू a माइनस b वेक्टर which is a vector minus b vector. तो दिस विल बी 5 I कैप, ऊपर लिखा है डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो समझ में आ रहा है कि करें, 5 I कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप प्लस माइनस I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप. तो ये आएगा 5 I कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप माइनस I कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप. अब ये मेरे ख्याल से कट हो जाता है आराम से. करेक्ट, कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं कट कर रही हूँ, पागल कोई बताएगा मुझे मैं क्यों ये कट कर रही हूँ. 1 सेकेंड. 5 तो I एंड ये आएगा 4 I कैप, 4 I कैप and minus and minus plus, so that will be minus 4 j cap. ठीक है, and my 3 और ये आएगा plus 2 k cap. तो इसे भी हम लोगों को एक नाम दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसे नाम देते हैं d वेक्टर. करेक्ट, और ये है आपका सेकेंड वेक्टर. ओके, सो नाउ व्हाट विल यू डू, 4I minus 4j plus 2k. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 4 I कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप. ठीक है ना, तो ये हमारा सेकंड वेक्टर आया. अब हमको क्या देखना है कि इफ़ वी कैन शो दैट, देखो अगर ये 90 डिग्री है, अगर परपेंडिकुलर है तो वी हैव टू शो दैट द डॉट प्रोडक्ट इज 0, है ना. तो देयरफॉर वी कैन से दैट इफ c वेक्टर डॉट d वेक्टर is equal to 0, then we can say that angle between them is equal to 90 degree. correct,
then angle between them is equal to 90 डिग्री, ये हमको बताना है। ओके ओके, पेज हमारा ख़त्म हो चुका है, जाना हमको नेक्स्ट पेज पे पड़ेगा। तो यहाँ तक आप देख लो ज़रा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। करेक्ट, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू शो, क्या बताना है हमको, कहाँ तक आए थे हम लोग। तो वी हैव टू शो दैट सी, देखो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, वी हैव टू शो दैट ये अगर ज़ीरो है, इफ़ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज ज़ीरो, करेक्ट, देन वी कैन से दैट, पिछले में स्लाइड में लिखा था मैंने, बट सिंस वी आर कंटिन्यूइंग, देन वी कैन से दैट angle between them is equal to 90 degree, correct, angle between them is equal to 90 degree। तो क्या करेंगे देखो, अभी फिर पहले तो इनके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अच्छा, तो अभी कोइंसिडेंटली क्या था हमारा पहले वाला, वो था 6i कैप प्लस 2j कैप, ये वहाँ से मैंने कॉपी करके लिया था पहले, इसके लिए है मेरे पास, आप लोग लिखो। आई कैन नॉट वाइल आई एम रिकॉर्डिंग एक्चुअली, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आगे ही जा सकते, फिर पीछे नहीं जा सकते, सो आई कैन नॉट गो बैक। 4i कैप माइनस 4j कैप एंड आई थिंक इट वॉज प्लस 2k कैप, करेक्ट। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा। तो देखो हमको तो पता है क्या करना है, 6 4 ज़ा 24, करेक्ट, हमको यही लेना है, इसका इसके साथ, राइट, आपको पता है। देखो इसका i का i के साथ, राइट, फिर j का j के साथ और k का k के साथ, बस यूं ही करना है हमको, और कुछ करना ही नहीं है। सो फिर 6 4 ज़ा 24 एंड i इंटू आई विल गिव यू 1, सो दैट्स 24 प्लस इंटू माइनस, सो दैट विल बी माइनस 4 2 ज़ा वो आएगा 8 और माइनस 8 2 ज़ा आएगा 16, सो दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 24, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया ना, देयरफॉर वी कैन से सिंस the dot product of a vector and b vector is equal to 0, therefore angle between them is equal to 90 degree, correct, angle between them is equal to 90 degree। ठीक है ना, ये आपका एक्सप्लेनेटरी आंसर, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, आपको लगेगा मैं बार बार लिख रही हूँ, लेकिन दिस वाज व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस वाज हाउ द आंसर शुड बी प्रेजेंटेड, करेक्ट। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट magnitude of A is equal to 2 and magnitude of B is equal to 3 and their dot product is equal to 4। so देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं फिर क्या करना है। गिवन क्या है पहले वो तो लिख लेते हैं। क्या है गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट्स इक्वल टू 3, डॉट प्रोडक्ट दिया है दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट दिया है 4। चलो नाउ देखो, हमने पहले क्या देखा था, आपको याद है, हमने देखा था, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल के रिमेंबर, जब भी हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, करेक्ट, देखा था ना हमने। तो फिर उसी को यूज़ करके हम लोग अभी वी विल सी व्हाट इट इज़, ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, सी वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो लेट अस डू इट। तो पहले उसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इफ फाइंड ए वेक्टर इफ टू वेक्टर्स, ओके, तो लेट्स टेक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका स्क्वायर, करेक्ट, दैट मीन्स दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी, ये यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सबका सेम ही करेंगे हम लोग, ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए आएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर. Now this a into this b, that will be minus a vector dot b vector. फिर this will be minus b vector dot a vector और ये आएगा प्लस b vector dot b vector. a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला याद है कि नहीं? देखो अब हमको ये पता है ये दोनों इक्वल है ना. ओके तो क्या करेंगे हम, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर. अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो वी कैन से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं. ए मैग्नीट्यूड हमारे पास है वो आएगा 4 माइनस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है वो भी 4 प्लस बी स्क्वायर का कितना आएगा 3 स्क्वायर वो आएगा 9. करेक्ट. तो कितना आया देखो हमारे पास, व्हाट डिड वी गेट हियर, तो वी विल गेट हियर ए वेक्टर magnitude of a vector minus b vector the whole square. Now this is equal to how much, 4 minus 8, 4 minus 8 plus 9. पहले पॉजिटिव नंबर को ले लो 13 और 13 माइनस 8 आएगा 5. 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5. तो 5 किसकी वैल्यू है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो हमको तो वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए माइनस बी वेक्टर. Okay, so this will be root 5. Correct. Root 5 cannot be taken. Okay. माइनस रूट 5 नहीं ले सकते. देखो ये स्क्वायर है ना, एक्चुअली ये स्क्वायर है तो ये दो वैल्यूज आएगी, एक तो ये आएगा प्लस या माइनस, लेकिन हम माइनस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, तो ये ले ही नहीं सकते. तो फिर आपका फाइनल आंसर आएगा क्या, फाइनल आंसर अगर आपको देखना है तो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 5. करेक्ट. ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और पता नहीं थोड़ा थोड़ा जब समझ में आता है कोई टॉपिक तो मज़ा भी आता है. क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगने लगता है, हम लोग रिलेट कर पाते हैं. इसके लिए क्लास में मक्खे जैसे मत बैठे रहो, ध्यान देना. ठीक है, चलो और एक सम करते हैं कि भाई ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड x vector minus a vector into x vector plus a vector is equal to 8, then we have to find out magnitude of x vector. तो फिर करते हैं, चलो क्या दिया है पहले गिवन लिखते हैं, सोल्यूशन तो करेंगे. ओके पहले क्या दिया है, गिवन गिवन है कि a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. करेक्ट. a वेक्टर इज a यूनिट वेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पे बहुत. ओके दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1. करेक्ट. आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मैथमेटिकल टर्म्स में लिखनी चाहिए, ज़्यादा काम आती है. अब दिया क्या है हमको, वी हैव बिन गिवन एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8. करेक्ट. ज़्यादा सीधा हम लोग यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा दे तो आपको पता चलेगा, लेकिन करो उसको ओपन करते हैं. सॉरी, so we can say x वेक्टर का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, मॉड्यूलस स्क्वायर. करेक्ट. x इंटू एक्स, राइट, माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर. ओके और ये आएगा नहीं, ये प्लस आएगा, सॉरी. और ये अभी ये करेंगे x इज माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर
and this will be minus modulus of a vector the whole square. करेक्ट. अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ, ये अलजेब्रा है ना भाई, आइडेंटिटी सिमिलर सिमिलर दिखेगी आपको, ठीक है ना. ओके तो अभी हमारे पास वैल्यूज़ दिए उन्होंने किसकी वैल्यू दी है हमको, ए वेक्टर से यूनिट वेक्टर, तो ये इसकी वैल्यू तो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर उसका कुछ नहीं ढूंढना है हमको, माइनस होल स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x vector is equal to 9, so therefore we can say that magnitude of square है ये, therefore magnitude of x vector is equal to 3. correct, so this is going to be 3 units. ये है आपका फाइनल आंसर. करेक्ट. चलो अब इसके बाद हमको जो देखना है वो है प्रोजेक्शन. पहले इसे समझ लेना ठीक तरह से, इसके बाद हम लोग क्विकली प्रोजेक्शन देख लेते हैं क्या है, एक एग्जाम्पल करेंगे and you can then carry on with the sums. ठीक है. Okay, so let us see now what is projection of a vector on b vector. तो क्या होता है प्रोजेक्शन देखेंगे. let's say this is one vector which is, let's take this as our a vector, और एक वेक्टर है नीचे जो है b vector. करेक्ट. अब we have an angle theta which has been formed between these two vectors. Now imagine that there is a light which is on the top of a vector. अब जब light है तो shadow भी आएगा. correct. So this vector, this a vector, because of the rays of the light will cast a shadow on b vector. Perfect. That means this shadow will have some length, and this length, the length of this shadow, the length of the shadow, the length of this shadow, और किसकी shadow है, this shadow belongs to vector a, the length of the shadow is called projection. ये क्या है हमारा projection. ठीक है. अब हमको क्या करना है, देखो we will go ahead now, we have to find out ये projection क्या है, ये हमको ढूंढना है इसकी length क्या है. ठीक है. अब समझो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. अब समझो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल लगभग यहाँ से निकल के आया है इस तरह से. ठीक है ना. आई होप यू गॉट इट. राइट. तो इमेजिन कि इसकी ये लेंथ 5 है. जस्ट इमेजिन. ओके. ये ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड सी. ठीक है. अब इसकी लेंथ 5 है. ओके. अब नाउ दिस इज दिस एंगल थीटा. देखो ये थीटा और ये थीटा को सेम इमेजिन करो. आई होप आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने अभी कहाँ से, देखो ये ट्रायंगल यहाँ से स्लाइड होके निकला है. करेक्ट. तो बेसिकली दिस इज, इमेजिन दैट इसकी मैग्नीट्यूड ये 5 है. ओके. ओके. नाउ अगर ये 5 है तो साइन थीटा कितना आएगा बताओ. साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं. चलो. सो साइन cos theta will be BC or CB by 5. That means 5 cos theta will give you the length of BC. है ना. तो ये आपका लेंथ आएगा 5 cos theta. ठीक है. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन थीटा. साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 5. दैट मीन्स 5 साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी. तो ये जो साइड है ये आपका कितना आया, 5 साइन थीटा, दिस एंटायर साइड. ठीक है. दिस इज योर 5 साइन थीटा. ये तो हमको मिल गया साइड इन फॉर्म ऑफ. अब आप देखो this brown color triangle we have got it from this particular figure. correct. तो ये जो साइड है it will coincide with this, ये ट्रायंगल के ये शैडो के साथ. करेक्ट. इस यहाँ से ही वो निकला है. दैट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वही इस पिंक लाइन की लेंथ होगी ना. करेक्ट. वहीं से तो निकाला ये हमने. तो दैट विल बी द सेम लेंथ दैट वी हैव.
then therefore can we say that we can say that projection of a vector ऑन बी वेक्टर. अब मैंने अभी अभी बोला था ये 5 इसकी लेंथ है. देखो 5 इज द लेंथ ऑफ दिस ए सी. दैट मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर. नो, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. करेक्ट. तो 5 cos के जगह पे आई कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाई cos थीटा. नो, I can write down like that. So that means projection of a vector on b vector. Projection of a vector on b vector is equal to magnitude of a vector into cos theta. Correct. Where theta क्या है? Where theta is the angle between the two vectors. Correct. Is the angle between the two vectors, between a vector and b vector. two vector मतलब a vector and b vector. ये ट्राइंगल जो है पूरा ये हमने इसी में से निकाला है. करेक्ट. एंड देन वी आर एबल टू शो दैट. तो नाउ वी हैव दस डिराइव्ड. क्या डिराइव किया है हमने कि इसका लेंथ अगर हमको ढूंढना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस पिंक कलर लाइन विच इज़ एक्चुअली द प्रोजेक्शन, तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा. ये आएगा इसका लेंथ. करेक्ट. जो हमने यहाँ पे भी लिखा है, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू cos थीटा. ठीक है. आई होप ये समझ में आया है आपको. सम्स करेंगे थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. लेट अस सी व्हाट वी हैव. ओके. नाउ सपोज थीटा इज नॉट गिवन. कभी कभी हमको थीटा नहीं देते, फिर क्या करेंगे हम, है ना. ये भी तो सिचुएशन आ सकती है. ओके. नाउ सपोज व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, तो क्या होगा फिर. when theta is not given, in that case we can find the projection by using one another formula. वो फॉर्मूला क्या है. तो in this case लिखते हैं यहाँ पर, in this case we can use the below formula. क्या फॉर्मूला है देखो. we can use this as a vector into b vector by magnitude of b vector. ओके. अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होता है, सॉरी बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो सेम एज बी कैप ना भाई. तो इसका मतलब वी कैन राइट डाउन दिस एज ए वेक्टर इनटू बी कैप. अगर ये किसी के समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है. अगर नहीं आया है तो ज़्यादा चिंता ही ना करो भाई. इसमें हमको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास तरीके तो होते ही है. तो छोड़ो सब कुछ, ये सब जो भी आपको नहीं याद रहता है, सिर्फ इतना याद रखो. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट प्रोजेक्शन व्हेन एंगल इज़ नॉट गिवन. ये याद रखो. जब एंगल दिया है तो हमारे पास तो है ही तरीका, बट व्हेन एंगल इज़ नॉट गिवन, व्हेन थीटा इज़ नॉट गिवन, then a vector dot b cap will give us the projection. Correct. will give us, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिखते प्रोजेक्शन व्हेन, ऐसे लिखते. रुको 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 रुको, ऐसे लिखते सीधा. दैट प्रोजेक्शन फॉर्मूला when theta is not given. क्या है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला. सो लिखेंगे which is equal to a vector dot b cap. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब आपको थीटा नहीं दिया है. दो सम्स करेंगे मेरे ख्याल से. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन हाउ टू डू द थिंग्स. करेक्ट. तो ये हमारा, ये एक
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ओके, देखो ये दो ही एग्जाम्पल्स है प्रोजेक्शन पर, लेकिन बाद में सम्स में आपको आ जाएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए which is 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on vector b which is I cap plus 2j cap plus k cap। तो देखते हैं इसका क्या आता है सोल्यूशन। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर हमको पहले लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर on b vector, this is equal to a vector dot b cap, करेक्ट। ओके, तो ये b cap मतलब इट इज़ द सेम थिंग, b cap का मतलब वापस रिवर्स वही आना पड़ेगा हमको, a वेक्टर इंटू b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो कैसे करेंगे, it will be 2 into 1 plus 3 into 2, ये तो आपको आ जाता है ना, बी वेक्टर क्या करना है, 2 सिर्फ आई 3 into 2 वही ले रहे हैं ना हम लोग, 3 into 2 plus 2 into 1, राइट, plus 2 into 1 डिवाइडेड बाय क्या है, सॉरी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो इसको पूरा ही आएगा ना ये, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू व्हाट, this will give you 2 2 2 plus 3 6 3 to the 6 plus 2, and this is divided by 4 plus 2, that is root 6, correct। तो this will be 10 root 6। ठीक है, 10 रूट 6, अगर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ये एनसीईआरटी की खासियत है, तो वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। बाद में बच्चे बोलते हैं कभी कभी ये आंसर कैसे आया, 12th स्टैंडर्ड का बच्चों को पता नहीं चलता है कि रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कभी कभी है ना, 10 रूट 6 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू रूट 6, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 6 बाय 6, तो ये आएगा 5 ज़ा, ये आएगा 3 ज़ा, आपका फाइनल आएगा 5 बाय 3 रूट 6 is equal to projection of a vector on b vector, correct। this is your answer, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट वाला एक फंडा है यहाँ पर, मतलब टिपिकल टॉपिक का, इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देखते हैं क्या है वो। For any two vector a vector and b vector, we always have a magnitude of a vector into b vector which is less than or equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector। ये हमको प्रूव करना है विद कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स से लेट फर्स्ट लेट्स टेक a vector and b vector, okay, b any two नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, करेक्ट। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, करेक्ट। अगर ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है देन दे विल फुलफिल वन कंडीशन। क्या है वो कंडीशन, देन वी कैन से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर into cos theta, correct। now if we take modulus on both the sides, तो कैसे दिखेगा ये, देखो मेरी एक बात समझो आप लोग पहले, ये जो है ना, ये क्या है आपको पता है, दिस इज अ नंबर, दिस इज
ए नंबर, एक नंबर है, एक वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, करेक्ट। ओके, तो अगर हम लोग if we take modulus on both the sides, so what will you get? So we will get modulus of a vector dot b vector, this is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into modulus of cos theta, करेक्ट। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो लाइन है ना, ये मैग्नीट्यूड के लिए बोलते हैं हम ना, ये मैग्नीट्यूड है, ओके। अब ये जो लाइन है ये किसके लिए लिए हमने, ये मॉड्यूलस के लिए ली है, करेक्ट। अच्छा, ये भी लाइन क्या है, ये मॉड्यूलस है, ये दोनों, ये और ये, करेक्ट। बिकॉज ए वेक्टर और बी वेक्टर एक नंबर है एंड वी आर लुकिंग ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, करेक्ट। अब हाउ इट विल लुक लाइक, नाउ दिस एंटायर थिंग विल लुक लाइक a vector dot b vector divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector, which is equal to magnitude of cos theta, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो, नाउ वी नो दैट cos थीटा, देखो एक cos थीटा का, देखो दैट cos थीटा विल बी, उसका रेंज विल बी व्हाट, बिटवीन, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको मॉड्यूलस वैल्यू ले लेते हैं, अगर इसकी मॉड्यूलस वैल्यू ले लेते हैं हम, इफ़ आई से मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू 1, फिर ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, नेगेटिव नहीं चलेगी, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, करेक्ट। we are not going to take -1, that is why, because we are taking modulus value of cos theta, that means ये जो cos theta है यहाँ पर, so क्या हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो cos theta है, हमको अगर इसको रीराइट करना है वापस, ओके, वन सेकेंड, ये जो cos theta का फंडा है ना, ये मैं थोड़ा सा समझा है ना आप लोगों को, आप लिखो यहाँ पर, मुझे आई विल नीड द स्पेस देयर, ओके। नाउ one second, okay, so now that means can we write this as, ये मॉड्यूलस वैल्यू में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो लेस देन और इक्वल टू 1 करके लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into magnitude of b vector is equal to, directly we can write down only cos theta, it is less than or equal to 1, करेक्ट। नाउ अगर ये है तो क्या आएगा, अगर अगर cos थीटा, देखो ये इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये cos थीटा का अगर हम लोग निकाल देते हैं, तो दैट मीन्स वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ, sorry, modulus of a vector dot b vector into magnitude of a vector into magnitude of b vector is equal to, सॉरी, इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसको जब आप यहाँ पे ले लोगे तो अब क्या आएगा, देखो, देन यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो हमको प्रूव करना है ना, करेक्ट। सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड, correct। So what we have done here, we have proved the Cauchy-Schwarz inequality। I hope आपको ये समझ में आई है बात, ठीक है। यहाँ पर we end up projection और the explanation of I think 9.3, ओके। यहाँ पे हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट के बारे में, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में है। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट वाली, तो वी विल सी व्हाट वी कैन डू देयर। टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय।